افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے، فیلڈ مارشل کا دو ٹوک اعلان۔ کہا افغان سرزمین سے جاری سرحد پار دہشت گردی کے باوجود سفارتی اقدامات کیے۔ پاکستان نے دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے متعدد بار پیشکش کی۔ افغان طالبان رجیم بھارتی سرپرستی والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو افغان طالبان رجیم نے مدد فراہم کی۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں سے پاک ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پشاور کا دورہ، قبائلی عمائدین سے ملاقات، ہیڈ کوارٹر 11 کور میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ ISPR کے مطابق پاک افغان بارڈر پر امن و استحکام کے لیے انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر بریفنگ میں سرحدی علاقے اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کی خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کی دہشت گردی کے خلاف جد و جہد کی تعریف، قبائلی عمائدین کا مسلح افواج کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ۔ عرضی قبول، پاکستان نے افغانستان سے دوبارہ مذاکرات پر ہاں کر دی۔ میزبانوں کی درخواست پر پاکستانی وفد کا مثبت اشارہ۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان دوبارہ مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثوں سے رابطہ کیا تھا۔ مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بار بھی مذاکرات پاکستان کے مرکزی مطالبے پر ہوں گے۔ افغانستان پر دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ افغان رجیم نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی وفد جو وطن واپس روانہ ہونے والا تھا، اب استنبول میں مزید قیام کرے گا۔ امن دشمنوں کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن، پاک فوج کی خوارج کے خلاف بڑی کامیابی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 22 فتنہ الخوارج انجام کو پہنچے۔ باجوڑ میں افغانستان سے در اندازی کی کوشش، کمانڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 خوارج ہلاک دہشت گرد امجد خوارج کے سربراہ نور ولی کا نائب اور رہبری شورا کا سربراہ تھا۔ حکومت نے امجد کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے خلاف 2 کارروائیاں، 18 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ چلتن کی پہاڑیوں میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 14 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ کیچ کے علاقے بولیدا میں بھی 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے افغان سرزمین تاحال دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ ایوان صدر میں بڑی بیٹھک، صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات جاری۔ وزیر اعظم حکومتی وفد کے ہمراہ ایوان صدر پہنچے۔ دورہ سعودی عرب اور حکومتی معاملات پر بریفنگ دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری، راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر اور شیر رحمان بھی شریک ہیں۔ حکومتی وفد میں رانا ثناءاللہ اور محسن نقوی شامل۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو آزاد کشمیر حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ محسن نقوی اقتدار کے 2 ستونوں کے درمیان ان ایکشن۔ وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر میں بیٹھک لگائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات، عمان اور ایران کے دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ علاقائی روابط اور وزارت کے امور پر بریفنگ۔ وزارت داخلہ سے متعلقہ امور، سیکیورٹی صورتحال اور علاقائی روابط پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے دونوں ہمسایہ ممالک سے قریبی تعاون کو خطے میں امن، استحکام اور معاشی ترقی کے لیے اہم قرار دیا۔ بلاول بھٹو سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایوان صدر میں ملاقات، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال، تحریک عدم اعتماد اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی افغان طالبان رجیم کو سخت تنبیہ۔ العربیہ کو انٹرویو میں کہا کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے روکنا ہوں گے۔ بھارت افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ رہا ہے۔ طالبان بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس نئی دہلی اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کے شاہد موجود ہیں۔ جب طالبان کے ایک وزیر بھارت میں تھے، اس وقت پاکستان اور افغانستان میں جھڑپیں ہوئیں۔ پاکستان نے افغان طالبان کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ ہمارے متعدد جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مزید کہا کہ چند ماہ قبل بھارت کو جنگ میں شکست سے دوچار کیا۔ جنگ میں بھارت کے ساتھ طیارے مار گرائے، جس کا ذکر امریکی صدر کئی بار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد 1 نومبر تک مؤخر۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے کل اہم اجلاس طلب کر لیا۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। आज एआई, आईटी और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वो एआई के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं और मुझे उन्होंने कहा कि हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। हमें मसनूई जहानत के मैदान में आगे जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब एआई और आईटी पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। दुनिया आज एआई और आईटी में अपना लोहा मनवा रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो अजीम बिरादर मुल्क हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवानों को एआई और आईटी की तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। होनहार तलबा को कौम की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने होनहार तालिबा को अपनी निशस्त पर भी बिठा दिया। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात, अपोजिशन के दावे ढेर। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ने तमाम पार्टी वोट हासिल कर लिए। जनरल सीट पर ज़िम्न इंतखाब पीटीआई उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक अपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट लिए। ANP के 4 अरकान का इंतखाबी अमल का बाइकॉट। खुर्रम ज़ीशान ने कहा, ऐवान बाला में जाकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ूंगा। बानी से मुलाकात की 4 कोशिशें मगर दरवाज़ा अब भी बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तमाम कोशिशें रायगा। बानी तहरीक इंसाफ से नहीं मिल पाए। कहा कि एक बार फिर अदालती अहकामात को नहीं माना गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिखा, हमें किसी आईनी कानूनी तरीके से नहीं मिलने दिया जा रहा। कोई है जो आइन और कानून से भी ऊपर समझ रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा आईनी कानूनी हक है हम अपने लीडर से मिल सकें। बानी को उसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। बानी पीटीआई की हदायत पर काबीना को अपनी शक्ल दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले फाइनल की गई, बाकी काबीना के अरकान भी ज़ेर गौर हैं। नवंबर में NFC की मीटिंग हुई तो ज़रूर जाऊंगा। इजलास में अपने सूबे का हक मांगूंगा। पुरानी और कबाड़ की गाड़ियां नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है डंके की चोट पर लूंगा। ₹10,000 से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूं। वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज का मसाजिद के इमामों के लिए वजीफा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहतरमा ये जान लीजिए कि ये तजुर्बा खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी हो चुका। इस स्टेज पर पूरे मकातबे फ़िक्र और तमाम दीनी मदारिस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम ये 10,000 रुपये आपको वापस करते हैं। हुकूमत 25 लाख रुपए भी दे तो उलमा कंट्रोल में आने वाली नहीं। उलमा को खरीदने की कोशिश की जाती रही है। हमने बानी के दौर में भी ऐसा फैसला मुस्तरद कर दिया था। मजहबी जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं। मज़ीद कहा कि गजा में जुल्म हो रहा है। उम्मत मुस्लिमा खामोश है, किसी को एहसास नहीं। हम क्यों ट्रंप को नोबेल अमन इनाम दिलाने के लिए कोशा हैं। पहली बार अमेरिका की पाकिस्तान बारे पॉलिसी में तब्दीली हुई है। वज़ीर आज़म माजी में सेल्स टैक्स में किए गए फ्रॉड पर बरहम। FPR में इस्लाहात के हवाले से इजलास। पड़ाल के निज़ाम की बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट की हदायत। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनीज और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात का हुक्म। तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करे। शनाख्त होने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हदायत।
दो सुपर ताकतों के दरमियान बड़ी बैठक। जनूबी कोरिया में अमरीकी और चीनी सदूर में मुलाकात। ट्रंप और शी जिनपिंग का 1 साल के लिए तिजारती मुआहदा। अमरीका का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। अमरीकी टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो गया। ट्रंप ने कहा चीनी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ब्लैकवेल चिप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू होगी। नायाब मादनियात के मामलात पर मजीद रुकावटें नहीं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे के बाद चीनी सदर अमरीका भी आएंगे। शी जिनपिंग बोले चीन और अमरीका को बदला लेने के खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीन की मईशत एक समुंदर की तरह है। चीन हर किस्म के खतरात और चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। NCCIA लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान मंजर-ए-आम पर आ गए। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात। FIA लाहौर ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। कहा किसी ने अगवा किया, न किसी ने हिरासत में लिया। साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। खौफ से रुपोश हो गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ज़ाती वजूहात पर ओहदे से मुस्तफ़ी सलीम खान ने चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को इस्तीफ़ा पेश किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 45 रोज़ की तातील पर थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ़खर जमान के पास रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इजाफी चार्ज। नवंबर 2024 में मोहम्मद सलीम खान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए थे। रजिस्ट्रार सलीम खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी समेत दीगर जजेस की भी शिरकत। पाकिस्तानी खवातीन से शादी करने वाले अफगान मर्दों को शहरियत देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने अपील दायर कर रखी है। हाई कोर्ट ने कहा शादी करने पर अफगान मर्द को POC कार्ड जारी किया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए ये देखना चाहिए कोई शख्स दीवार फलांग कर आया, दरवाजा फलांग कर। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत की जाए। किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 6 अरब 39 करोड़ रुपए तकसीम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डिप्लोमेटिक बाजार का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा डिप्लोमेटिक बाजार सफारतकारी के जौहर दोस्ती, कुशादगी, इंसानियत को खूबसूरती से उजागर करता है। सिंध हमेशा सफारतकारी के महाज पर नुमाया रहा। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर तरक्की पसंद और पुरएतमाद पाकिस्तान की तस्वीर कशी कर रहे हैं। वज़ीर आला को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर IG पुलिस की रिपोर्ट पेश। मुराद अली शाह ने कहा पहला ही चालान मुआफ, दोबारा खिलाफ वर्जी पर मुआफ़ी नहीं मिलेगी। मुतनाज़े ट्वीट केस। ईमान मज़ारी और शौहर हादी अली चट्ठा पर फर्द जुर्मायत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में मुकदमे की समाअत। ईमान मज़ारी और हादी अली का सेहते जुर्म से इनकार। जज और हादी अली चट्ठा के दरमियान तल कलामी भी हुई। अदालत का हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मुश्किलें जमा करवाने का हुक्म। हादी अली चट्ठा का इनकार। जज पर गैर कानूनी काम करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ईमान मज़ारी ने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें। जज अफजल मजोका बोले मेरा असूल है कि मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब और सिंध ने ज़राई आमदनी पर टैक्स की पुरानी शरह बहाल कर दी। दोनों सूबों ने सैलाबी नुकसानात के बायस आर्जी तौर पर टैक्स कम किया। पुरानी शरह 1 जनवरी से 30 जून 2025 तक लागू होगी। IMF की मुशावरत से टैक्स रिलीफ सिर्फ 6 माह के लिए होगा। 12 लाख ज़राई आमदन पर टैक्स नहीं होगा। 12 से 24 लाख पर 5% टैक्स आयद होगा। 24 से 48 लाख पर 60,000 रुपये इजाफी आमदन पर मजीद 10% टैक्स। 48 लाख से जायद पर 3 लाख रुपये इजाफी रकम पर 15% टैक्स लागू होगा। सिंध हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम। सरकारी स्कूलों में पहली बार तलबा तलबात की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। सिस्टम तैयार कर लिया गया।
तलबा महकमा तालीम की ऐप के जरिए हाजिरी लगाएंगे। स्कूल में तलबा की तादाद कितनी है, कितने आते हैं, रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। कम हाजिरी पर हेड मास्टर को कसूरवार ठहराया जाएगा। ऑनलाइन हाजिरी का इत्तलाक पहली से 12वीं जमात के तलबा पर होगा। पाक चीन दोस्ती में तारीखी पेशरफ्त। चीन का पाकिस्तानी खलाबाज को खला में भेजने का ऐलान। पाकिस्तान के 2 खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पेशरफ्त पाकिस्तान के खलाई तहकीकी इदारे स्पार्को और चीन की इंसानी खलाई एजेंसी के दरमियान मुआहदे का नतीजा है। अमरीकी सदर ट्रंप का 33 साल बाद जौहरी हथियारों के तजर्बे का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, महकमा जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया। ये अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 वर्षों में अमरीका के बराबर आ सकता है। चीनी वजारत खारजा का अमरीका के जौहरी तजर्बात शुरू करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की पासदारी करे, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहिए।